السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس لیکچر نمبر 4 کلاس سیکنڈ ایئر. ہم پڑھ رہے تھے اسٹیپس آف پروگرامنگ یا 5 مین اسٹیپس آف پروگرامنگ. اور ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ پہلا اسٹیج ہے ڈیفائننگ دا پرابلم، دین سیکنڈ اسٹیج از پلاننگ دا سولوشن، تھرڈ اسٹیج از کوڈنگ دا پروگرام، fourth stage is testing the program, fifth stage is documenting the program. ٹھیک ہے، اب ہم باری باری ان کی اور ڈیٹیلز کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم ڈیفائننگ، پلاننگ اور کوڈنگ کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے ڈیفائننگ دا پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈیفائن کی جا رہی ہوتی ہیں. ڈیفائننگ دا پرابلم اسٹیج نمبر 1. سب سے پہلی بات تو اسٹوڈنٹ ذہن میں یہ رہے کہ ایک پرابلم کو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. آپ کسی بھی پرابلم کے سولوشن کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے، اس کا سولوشن ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے اس کا سولوشن بنانا اگر آپ کو اس کے جو پرابلم ہے، جو ٹاسک ہے، جو آبجیکٹو ہے وہی واضح نہ ہو. اگر وہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ اس کا سولوشن نہیں ڈھونڈ سکتے. تو ڈیفائننگ دا پرابلم کے اندر سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمیں جس کمپنی کے لیے، جس کلائنٹ کے لیے، کسٹمر کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنا ہے، پروگرام بنانا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے ورکرز کے ساتھ، وہاں کے اونر کے ساتھ آپ کو بہت ساری میٹنگز کرنی ہوں گی، بات چیت کرنی ہوگی. آپ کو دیکھنا ہوگا وہاں لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، وہاں ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے، کون کون سی فیسلٹیز وہاں پر اویلیبل ہیں، اور کس طرح سے ابھی جو موجودہ اسٹائل ہے ان کا کام کرنے کا وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ میں نے جنرلی آپ کو بتایا کہ پرابلم کی ڈیفینیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے. مزید اس کے اندر ہم 4 اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا اسپیکٹ ہے دا پروگرام آبجیکٹو. ڈٹرمائن کرنا کہ پروگرام کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی بک کا پیج نمبر 3 بھی دیکھیں گے اور میں ادھر ہی سے آپ کو ساری ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، آپ نے اس کو ریڈ بھی کرنا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے ڈٹرمائننگ دا پروگرام آبجیکٹو کے اندر آپ پرابلمس کی اگر بات کریں، ٹاسک کی اگر بات کریں، تو روزمرہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹاسک ہوتا ہی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پروگرام ہے، دعوت ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے یا نہیں. یہ آبجیکٹو ہے، ایک ٹاسک ہے، ڈیسیژن لینی ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کلاس کے سیکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکیں. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے کہ آپ یو وانٹ ٹو چینج یور کلاس سیکشن. ٹھیک ہے، تو روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مختلف پرابلم، ٹاسک اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں سولو کرنے کے لیے. تو I want to see a payroll report for all employees in our IT laboratory. یہ کمپیوٹر ریلیٹڈ میں نے پرابلم جیسے آپ کے سامنے رکھا، آپ کی بک میں مینشن ہے ایگزامپل کہ فار ایگزامپل کسی IT لیبارٹری کے اندر امپلائیز کی پے رول رپورٹ جنریٹ کرنا، یہ ایک آبجیکٹو ہو سکتا ہے، ایک ٹاسک ہو سکتا ہے. تو ڈٹرمائننگ دا پروگرام آبجیکٹو، یہ ڈیفائننگ کے اندر ہم ایک اسپیکٹ یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آبجیکٹو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پرابلم ہے کیا، ٹاسک ہے کیا، واٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں کرنا کیا ہے. سیکنڈ ون از ڈٹرمائننگ دا ڈیزائر آؤٹ پٹ. ہمیں اس پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں آؤٹ پٹ کس طرح کا چاہیے. ایک بنیادی چیز تو یہ آپ کو دیکھنی ہے کہ آؤٹ پٹ آپ کو پرنٹ آؤٹ کی شکل میں چاہیے یا صرف اسکرین پہ آپ نے اس کی شکل دیکھنی ہے. یعنی آپ کو پروگرام کا آؤٹ پٹ جو ہے ہارڈ کاپی کی شکل میں چاہیے، پرنٹنگ کی فارم میں، یا اس کی سافٹ کاپی چاہیے ہے مانیٹر پہ ڈسپلے کی حالت.
तो ये भी एक डिज़ायर आउटपुट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। फिर इसी तरीके से कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आउटपुट के अंदर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसी स्टूडेंट की फ़ी रिसिप्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, तो जब उसको फ़ी रिसिप्ट आप देंगे प्रिंट निकाल के, तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसकी रिसिप्ट पे लिखी हुई आनी चाहिए। अब उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि जब आप स्टूडेंट की फ़ी रिसिप्ट प्रिंट निकालें तो उसमें एड्रेस भी लिखें, ठीक है। डेटा इनपुट करते हुए एड्रेस इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट की चाहिए होगी जब आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई बना रहे होंगे, लेकिन उसकी फ़ी रिसिप्ट निकालते हुए उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं है उस वक्त। तो हम डिटरमाइनिंग द डिज़ायर आउटपुट के फेस के अंदर ये तय करते हैं कि हमें क्या आउटपुट डिस्प्ले करना है, ठीक है। थर्ड जो एस्पेक्ट हम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में देखते हैं वो है डिटरमाइनिंग द इनपुट डेटा। अब जब आपने अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, डिज़ायर आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो देखो आप पहले हम बात आउटपुट को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि बज़ाहिर लगता ऐसा है कि जैसे इनपुट का अमल पहले होगा फिर आउटपुट आएगा, लेकिन हमने डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के फेज में पहले आउटपुट को इसलिए देखा कि आउटपुट क्या क्या हमें चाहिए, उसकी बेस पे ही हम जान सकेंगे कि ये डेटा आइटम्स इनपुट किए जाएंगे और आफ्टर प्रोसेसिंग ये आउटपुट हासिल होगा। तो जहन में रहे ये बात कि हमें थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में देखना होता है। आउटपुट को, डिज़ायर आउटपुट को पहले डिटरमाइन करने के बाद फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है। एंड फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज डिटरमाइनिंग द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। जब कभी आप कोई सॉफ्टवेयर सॉर्ट आउट करोगे तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के साथ ये बताना होगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट, हार्डवेयर रिसोर्सेज इसको चाहिए हैं स्मूथली रन होने के लिए, सक्सेसफुली रन होने के लिए। पता चला आपके सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो स्कैनर बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने ये अगर अपने कस्टमर को, क्लाइंट को ये बात नहीं बताई और वो उस प्रोग्राम को रन कर रहा है, उसके पास स्कैनर नहीं है, या कैमरा अगर उसमें रिक्वायर्ड है, या प्रिंटर अगर रिक्वायर्ड है, वो नहीं है, तो वो सक्सेसफुली उसको रन नहीं कर पाएगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो आप अपने प्रॉब्लम को जब डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, शुरू में पहला स्टेज है ये, जब आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं उसी वक्त इस चीज़ का तयन करते हैं, ये टारगेट सेट करते हैं कि भाई प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे, इस प्रोग्राम को रन करते वक्त कौन कौन से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला स्टेज था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज है, जैसे कि आप जानते हो, प्लानिंग द सॉल्यूशन। सारा प्रॉब्लम एक्सप्लोर कर लेने के बाद, उसको अच्छी तरीके से उसकी तमाम तशरीहात कर लेने के बाद, तफसीलात जान लेने के बाद, अब आप जो है प्लानिंग द सॉल्यूशन के स्टेज में आते हैं। और आप जो है इसमें फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक हो सकती है, और वो टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, वो टॉप डाउन प्रोग्राम डिज़ाइन हो सकता है, वो एल्गोरिथम हो सकता है, वो फ्लो चार्ट हो सकता है। तो बारी बारी हम इन तीनों टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉप डाउन प्रोग्राम डिज़ाइन की, तो टॉप डाउन प्रोग्राम डिज़ाइन के अंदर आप जो है प्रोग्राम के प्रोसेसिंग स्टेप्स को सेट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, छोटे छोटे से उसके मॉड्यूल सेट करते हो। आप अपनी किताब के पेज नंबर 4 को देखेंगे, वहाँ पर ये टॉप डाउन अप्रोच का जिक्र मौजूद है। जैसे मैं आपको इधर वजाहत कर दूँ कि आपकी उस पेज नंबर 4 पे जो टॉप डाउन अप्रोच की डायग्राम बनी हुई है एग्जाम्पल की, तो किसी पेरोल, एम्प्लॉइज़ पेरोल के हवाले से बात हो रही है, पेरोल की प्रोसेसिंग की बात हो रही है, ये पहला मॉड्यूल है। और इसके ये डिवाइड हो जाता है 3 सब मॉड्यूल्स, 3 इसके एरियाज हैं। एक एरिया है डेटा का रीड करना, जो कि इनपुट है, रीड इनपुट। जब भी किसी आप मुलाजमीन की तनख्वाह का प्रोग्राम बना रहे होंगे तो सबसे पहला बुनियादी काम तो
ان کا جو اٹینڈنس ریکارڈ ہے اس کا انٹر کیا جانا ہے. پھر دوسرا اسٹیج جو آتا ہے وہ کیلکولیٹ پے ہے. اس کی کیلکولیٹ کرنی ہے آپ نے تنخواہ, اس کے ڈفرینٹ الاؤنسز وغیرہ ہو سکتے ہیں. ایسے ہی پھر اس کے بعد آپ نے آؤٹ پٹ جنریٹ. تو یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ٹاپ ڈاؤن پروگرام ڈیزائن میں کہ پے رول پروسیس کے اندر یہ 3 اسپیکٹس. پھر اس کے اندر مزید ٹاپ ٹو باٹم کی طرف اگر ہم جائیں تو ریڈ ان پٹ کے اندر 2 اسپیکٹ آ جاتے ہیں. ریڈ امپلائیز ماسٹر ریکارڈ, جو امپلائیز آ رہے ہیں ان کی جو اٹینڈنس کا ریکارڈ ہے اس در سے ریڈ کیا جانا ہے, پورا ریکارڈ ایک ساتھ ریڈ کیا جانا ہے. یا پھر ریڈ انڈیویڈول ٹائم کارڈ, ہر امپلائی کو ایک ٹائم کارڈ ملا ہوا ہے اور اس کے ٹائم کارڈ کے اندر پنچ ہو رہا ہے اس کا ٹائم, یا تو آپ نے پھر اس کا انڈیویڈول ٹائم کارڈ ریڈ کرنا. تو یہ تو ہم نے ریڈ ان پٹ کے سب ماڈیولز کو ڈسکس کیا, ماڈیول, سب ماڈیولز, دین سب ماڈیولز, تبھی اس کو ہم ٹاپ ڈاؤن پروگرام ڈیزائن کہتے ہیں. اگر ہم کیلکولیٹ پے والے کے سب ماڈیولز کو ڈسکس کریں تو کیلکولیٹ پے کے اندر اگین 2 اسپیکٹس آ رہے ہیں. ایک تو آ رہا ہے کیلکولیٹ گراس پے, ایک ریگولر پے ہے اس کے اندر اور ایک ہے اوور ٹائم. اگر ریگولر پے, اوور ٹائم, یہ سب ملا کے آپ گراس پے کیلکولیٹ کرو گے. اور دوسرا ہے کیلکولیٹ نیٹ پے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, ٹیکسز کی بات کر رہے ہو کہ بھئی یہ تو اس کی گراس پے ہے لیکن امپلائی نے یہ ٹیکس دینا ہے, یا پھر کوئی اور اس نے اگر کبھی لون لیا ہے اس کی ڈیڈکشن ہونی ہے, یا پھر اس نے کوئی ایبسنٹیز شو کی ہیں, یا پھر اس نے کوئی شارٹ لیوز دی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی صورت میں کوئی ڈیڈکشنز اس کی ہیں تو یہ آفٹر ڈیڈکشن کیلکولیٹ آپ کرتے ہو نیٹ پے. تو یہ ہم نے کیلکولیٹ پے کے سب ماڈیولز ڈسکس کیے. اب اگر ہم بات کریں جنریٹ آؤٹ پٹ کی تو جنریٹ پے رول رپورٹ, ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ پے رول کی پوری رپورٹ جنریٹ کریں, اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ, طریقہ کار کے بجائے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہمیں پے رول کی رپورٹ جنریٹ کرنی ہو سکتی ہے, اور دوسرا ہم اس کے پے چیکس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں. تو یہ ٹاپ ڈاؤن پروگرام ڈیزائن تھا کہ یہ ہم نے خاکہ سا بنایا کہ ہم اس آبجیکٹو کو, جو پے رول پروسیسنگ ہمارا ٹاسک تھا, آبجیکٹو تھا, اس کو کس طرح سے سولو کر سکتے ہیں, کون کون سے ماڈیولز اس کے تیار کر سکتے ہیں. تو ایک ہمارا پرابلم کو پلان کرنے کا طریقہ کار ایک تو یہ آپ کے سامنے آ گیا, ٹاپ ڈاؤن اپروچ. سیکنڈ از الگورتھم. الگورتھم کی اگر ہم بات کریں تو الگورتھم جو ہے وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ہوتا ہے ڈیزائننگ اے پروگرام کا. ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن آپ اس میں لکھتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہم یہ کریں گے, پھر یہ اسٹیپ کریں گے, پھر یہ کریں گے. اچھا کون سی زبان میں؟ یہ سمپل ہیومن لینگویج میں لکھا جاتا ہے. اس کے لیے کسی آپ کو کمپیوٹر کی لینگویج, پروگرامنگ لینگویج کا سہارا نہیں لینا ہے. عام روزمرہ کی جو آپ کی زبان ہے, چاہے وہ اردو ہو, آپ انگلش یوز کریں, آپ سندھی, بلوچی, کوئی بھی زبان یوز کر لیں, آپ اس کے اندر اس پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھتے ہیں کہ میں یہ اسٹیپس فالو کروں گا اور یہاں آ کر میرے مسئلے کا سولوشن مجھے حاصل ہو جائے گا. تو الگورتھم از بیسیکلی این آؤٹ لائن ہوتی ہے یا سمری ہوتی ہے کسی پروگرام کی, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے ابھی لکھنا ہے. تھرڈ پلاننگ دا سولوشن اسٹیپ از فلو چارٹ. آپ فلو چارٹ وغیرہ بناتے ہیں. فلو چارٹ کی اگر ہم بات کریں, کلاس 9 کے کمپیوٹر کے اندر بھی آپ نے GW بیسک پروگرامنگ کے اندر فلو چارٹس بناتے ہیں. تو فلو چارٹ کی ڈیفینیشن کیا آپ نے جانی تھی اس وقت بھی, اور وہی بات ہے کہ فلو چارٹ از اے پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف دی پروگرام. یہ ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. آپ جو آپ نے ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن بنایا یا الگورتھم جس میں الفاظ کے ذریعے اگر آپ نے اپنی پروگرام کے سولوشن کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو فلو چارٹ کے اندر جو ہے آپ مختلف گرافیکل آبجیکٹ, اسٹینڈرڈ کچھ شیپس ہوتی ہیں, جیومیٹریکل شیپس, ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا سولوشن ڈیزائن کرتے ہیں, جو کہ اسٹینڈرڈ شیپس ہوتی ہیں.
और वो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की प्रोपोज्ड और उनकी डेवलप्ड स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इसका सॉल्यूशन जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्लानिंग द सॉल्यूशन। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं और वो क्या है, कोडिंग द प्रोग्राम। अब जब हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, अब हम कहीं जाके शुरू करेंगे कोडिंग के अमल को। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी सी बताऊं कि आपने देखा कि कोडिंग का प्रोसेस कितना लेट शुरू हुआ। पहले आपने एनालिसिस करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है हमें, फिर प्लान करना है, फिर कहीं कोडिंग शुरू करनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि आम तौर पे जो बिगनर्स होते हैं वो बड़ा जल्दी और बेचैनी दिखाते हैं इस चीज़ में कि बस उन्हें कोई टास्क मिले और टास्क मिलते ही वो इस चीज़ की कोशिश शुरू करते हैं कि यार बस हम कोडिंग शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। आपने हमेशा जितना ज़्यादा वक्त आप डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और प्लानिंग द प्रॉब्लम पे सर्व करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोडिंग द प्रोग्राम और अगले जो स्टेजेस हैं उनमें बहुत कम वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपने डिफाइनिंग और प्लानिंग के स्टेज को स्किप कर दिया तो अब कोडिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और सॉल्यूशन जो है कम वक्त के बजाय ज़्यादा वक्त लेगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक वुड कटर की मिसाल दी थी। एक वुड कटर, उसको अगर एक दरख्त काटने को कहा जाए तो अगर तो वो उसने बहुत अच्छा सा इस टास्क को, इस ऑब्जेक्टिव को गौर किया, एनालाइज किया, अपने टूल्स को देखा, दरख्त की लकड़ी की जो हैयत है उस सब को देखा, फिर तो वो बड़ा क्विकली अपने टूल्स को अप टू डेट करेगा और दरख्त को काट लेगा। लेकिन बग़ैर किसी मंसूबाबंदी के, बग़ैर किसी सोच विचार के अगर वो फ़ौरन अपने औजार लेकर दरख्त को काटने में लग जाएगा तो चांसेस हैं कि वो दरख्त उसके टूल्स के मेयार के मुताबिक ना कटे और उसको ज़्यादा वक्त लग जाए उस दरख्त को काटने में। तो कोडिंग द प्रोग्राम जो है वो एक थर्ड स्टेज है और हम जो है इसी चीज़ की कोशिश करेंगे। और अभी हो भी यही रहा है कि हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, थोड़ा थोड़ा वो बना रहे हैं, जहन बना रहे हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम और उसकी एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। कोडिंग ज़रा सा एनालिसिस, या एनालिसिस का लफ्ज़ मैं बार बार यूज़ कर रहा होता हूँ, ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और एनालिसिस द प्रॉब्लम एक ही जैसी बात है। तो डिफाइन या एनालिसिस और प्लानिंग करने के बाद फिर कोडिंग के स्टेज में हम जाएंगे। ठीक है, अब जब कोडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, कोडिंग के मायने क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हुए। अब आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना है और उसकी मदद से ये कोडिंग करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, जहन में ये बात रहे कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज उसको नहीं समझ में आती। अब मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप क्लास 9 में ये बात पढ़ चुके हैं कि मशीन लैंग्वेज एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, वो 0 एंड 1 बाइनरी ज़बान के ऊपर मुश्तमिल है। उसके कोड डिफ़िकल्ट टू लर्न है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है। तो हम जो है बहरहाल एक ऑप्शन आपके पास मशीन लैंग्वेज का भी है कि आप मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करें और वो बहरहाल एफिशिएंट होता है क्योंकि आप मशीन की ज़बान में उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स के ऊपर बेस कर रही होती है, जैसे कि बेसिक है, पास्कल है, सी, सी प्लस प्लस, और अभी मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके
कोई भी कोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो जहन में ये बात रहे कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को, उस इंग्लिश लाइक वर्ड्स को तो कंप्यूटर नहीं समझता, तो आपको क्या चाहिए होगा, लाजमी आपको इधर एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर का प्रोग्राम चाहिए होगा जो उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को तब्दील कर देगा मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में, और फिर मशीन उसको समझ के आपको आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देगी, रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करेगी। ठीक है, तो जब आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो जहन में रहे कि आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, और जब आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आप जहन में रखें कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। जब आप उसको ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज करना है सबसे पहली बात। नंबर 2, मैंने आपको जिक्र किया टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हमने मशीन लैंग्वेज की बात की और हाई लेवल लैंग्वेज की बात की। मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम होता है। एक सोर्स प्रोग्राम को आप लाजमी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील करेंगे ट्रांसलेटर्स की मदद से, ताकि वो क्या हो, मशीन उसको समझ ले और उसके मुताबिक आउटपुट डिलीवर करे, जो आपका डिज़ायर आउटपुट है वो आपको हासिल हो जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी इधर बात कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। आप जिस हाई लेवल लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे उसके साथ उसका ट्रांसलेटर आपको इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में, और वो ट्रांसलेटर ये किरदार अदा करेगा कि उस सोर्स प्रोग्राम को, उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील करेगा। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये प्रोग्राम्स होते हैं, और ये बेसिकली इस वक्त अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज के अतबार से तो ये दो होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है दो हैं, एक है इंटरप्रेटर और एक है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के फ़र्क को जान लेते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन कोई लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती है उसके ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार क्या है, वो ट्रांसलेट करती है वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उसने उठाई, ट्रांसलेट किया और उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाई, ट्रांसलेट किया, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, इंटरप्रेटर। जबकि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को रीड कर लेने के बाद उसकी ट्रांसलेशन आपको पेश कर देता है, उसकी ट्रांसलेटेड एक कॉपी भी सेव कर देता है। नेक्स्ट टाइम आपको कभी वो प्रोग्राम रन करना है तो उसी ट्रांसलेटेड फाइल को उठाता है। जबकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन की भी फाइल को कॉपी नहीं करता। जब आप कभी उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो उसको बार बार ट्रांसलेट करता है। तो अगर आपसे कोई मज़ीद इस बारे में पूछे कि आपको अगर कोई लैंग्वेज का इंतखाब करना हो तो आप कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, तो जनाब जहन में रहे कि ट्रांसलेटर का इंतखाब मेरा नहीं, आप जिस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे होंगे उसके डेवलपर ने, उसके बनाने वाले ने अगर उसकी ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर के ज़रिए रखी है तो इंटरप्रेटर के ज़रिए ही ट्रांसलेशन होगी, और अगर उसके डेवलपर ने उसकी ट्रांसलेशन कंपाइलर के थ्रू रखी है तो कंपाइलर के थ्रू ही होगी। अब बात जहन में ये रहे कि हम कैसे इंतखाब करें कि इंटरप्रेटर को फॉलो करें या कंपाइलर, तो हमें अपने प्रोग्राम की नौइयत को देखना होगा। अगर हमारा प्रोग्राम ऐसा है जो कभी कभी रन होता है, मोस्ट ऑफनली नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, फ्रिक्वेंटली नहीं होता, कभी कभी उसको रन करना या लर्निंग प्रोसेस मकसद है उससे, तो फिर आप ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं जो इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, तो ये हर दफ़ा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे साथ ही आपको उसका ट्रांसलेट करेगी स्टेप बाय स्टेप और आउटपुट डिस्प्ले करेगी। लेकिन अगर आपने एक
ऐसे किसी प्रॉब्लम का प्रोग्राम बना रहे हैं और ऐसा प्रोग्राम है जिसको फ्रिक्वेंटली रन होना, बार बार उसको ऑपरेट होना है, रन होना है, प्रोसेस होना है, तो हर दफ़ा ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजरने में टाइम कंज्यूम होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में हम ऐसी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं जो कंपाइलर बेस्ड हो, उससे उसका ट्रांसलेटेड फाइल डेवलप हो जाती है और बार बार उसको ट्रांसलेशन के अमल से नहीं गुजरना पड़ता। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 3 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग हमने डिस्कस किया। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द प्रोग्राम, कोडिंग द प्रोग्राम, इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है लास्ट 2 स्टेजेस जो कि क्या है, टेस्टिंग द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी किताब के पेज नंबर 3, 4 और 5 उसको बार बार थॉरोली रीड करें। इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो को भी बार बार व्यू करें, लिसन करें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर भी कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो उसको आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं ताकि वो डिस्कस किए जा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।